is the next aromatic reaction is there is something called as blank methylation reaction. Blank methylation reaction. And the electrophile in this case is it's slightly a complex one. It is actually you can say C single bonded O. It is bonded to a Lewis acid, generally ZnCl2. It is bonded with ZnCl2. It's not ZnCl2, rather it is ZnCl. Cl भी एक eliminate हो चुका होता है इसका. And then we have two hydrogens in it. So this is the electrophile which we have. And the sources, obviously the reagents which we use it is formaldehyde or formalin, methanol plus HCl, and we can use any Lewis acid here, but in blank methylation process, primarily ZnCl2 is used as Lewis acid. Okay. If we are talking about blank methylation, it has to be ZnCl2. Okay. Otherwise, with any other Lewis acids also, this is going to take place. The only thing is, it won't be called as blank methylation. Okay, na? And then the net outcome of this is we have something like this CH2Cl. Okay, that is our final product. Followed by blank methylation, we have another set of reaction called diazo coupling. Okay. Diazo coupling reaction. In this reaction, the electrophile which attacks on the ring is nothing but one benzyl ring or one benzene ring attached with triple bonded nitrogen and plus over this ये ओपन होता है तो फिर हमारे पास जो सिस्टम बचता है वो इसके ऊपर एक लोन पेयर और एक प्लस चार्ज. ठीक है, लोन पेयर और प्लस चार्ज. सो जनरली इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, इसको डायरेक्टली N2 प्लस कर लेते हैं. ठीक है, रियल नोटेशन क्या होता है, स्टेबल फॉर्मेट जो होता है उसका वो ये वाला होता है N डबल बॉन्ड N and plus with lone pair on this nitrogen. ठीक है ना. रिएक्टिव कौन सा होगा, रिएक्टिव ये वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है, बॉन्डिंग ये वाले रेजोनेंस स्ट्रक्चर से होती है इसकी. इसका लोन पेयर, इसका भी लोन पेयर, और ये एक वैकेंट ऑर्बिटल. वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से इसके पास क्या रहेगा, प्लस चार्ज रहेगा. ठीक है, ये वाला रिएक्टिव स्पीसीज होता है, ये इसका स्टेबल फॉर्म है. ठीक है, हम इसको इस फॉर्म में जनरली रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, सोर्स सोर्स जनरली हमारा होता है इसका, वी टेक अमाइन
plus HNO2. Remember, amine and HNO2. इसके रिएक्शंस के बारे में मैंने बताया है. So that is there. And on top of it we can have इसको stabilize करने के लिए, डायजोनियम को stabilize करने के लिए we generally add some HCl or things like that. तो यहाँ पर एक Cl माइनस आयन का भी प्रेजेंस हो सकता है, कोई और एक अनायन हो सकता है स्टेबलाइजिंग अनायन. ठीक है ना. प्राइमरी रिएजेंट्स यही होते हैं. और दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डाइएजो कपलिंग and the product is N double bonded N and firing in trans manner with lone pairs like this, oriented trans with each other. Is it okay? This is stable one. The second last could be again important reaction, Reimer Tiemann reaction. ठीक है. ये रिएक्शन या फिर इसके नीचे वाला रिएक्शन है एक कॉल्बेज रिएक्शन. कॉल्बे कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. ठीक है. ये दोनों के साथ ये होता है कि these are possible only when benzene ring is at least or more than that is at least as activated as phenol. ठीक है. फेनॉल या फेनॉल से ज्यादा जब एक्टिवेटेड होगा, ठीक है ना, बेंजीन रिंग, तभी ये दोनों रिएक्शंस हो सकते हैं. So we can say that when benzene ring takes place when a ring is more activated than phenol. ठीक है. This also takes place only when a ring is more is phenol or more activated. ठीक है. That should be the right way to call it, is phenol or more activated. ठीक है. This slight change in wordings. Phenol or more activated than phenol का मतलब phenol पे नहीं होगा. Actually phenol and phenol onwards होता है. Phenol or more activated
a ring. ठीक है. The minimum where it can take place is phenol, and above it can take place. रिएजेंट्स क्या क्या होते हैं इनके? तो राइमर ट्राइमर में हमारे पास the reacting species is actually a carbene. ठीक है. कौन सा कार्बीन होता है आप लोग बताओ मुझे. What type of carbene is it? Singlet carbene. It's a singlet carbene. ठीक है. So this is singlet carbene, which is the carbene. Furthermore, carboxylation के अंदर में it is CO2, which is the direct electrophile. ठीक है. इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती है. इसका रिएजेंट भी ये सिंपल ही होता है. लेविस एसिड का प्रेजेंस काफी होता है. So there can be any CO2 along with any Lewis acid is sufficient. ठीक है. ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस any Lewis acid. ठीक है. और इधर हमारा होता है the starting point has to be CHCl3 अगर सिंगलेट बनना है तो, and NaOH, right, along with some high temperature so that singlet system can get formed. ठीक है. The final product which we get is in Reimer timer we get this thing benzene ring substituted with ये OH तो होता ही है. इसके ऑर्थो पोजीशन पे C डबल बॉन्ड OH आता है. ठीक है. यहाँ पर ये एक्वस सिस्टम रहता है. अब Cl जो दो होते हैं वो OH माइनस से रिप्लेस हो जाते हैं. बेंजाइलिक पोजीशन पर है. SN2 SN1 दोनों मिला करके पूरे रिप्लेस हो जाते हैं. एंड दो OH आने के बाद एक H2O निकल करके स्टेबलाइज हो जाते हैं. सो बन जाता है क्या बनेगा? 2 हाइड्रोक्सी. क्या बनाओगे? क्या नाम दोगे इसको? बताओ. एंड यहां पर द नेट आउटकम इज OH, it is COO minus and any metallic ion which is there to stabilize it. ठीक है. So carboxylic acid substituted with phenol, substituted with this hydroxide. ठीक है. और इसका नाम क्या दोगे? What are you guys going to call it? This can either be called as 2-hydroxy benzaldehyde, right? And this is 2-hydroxy benzoate. Am I right? सुन रहे हैं हम लोग? Yes, sir. All of us? हाँ सर. बेंजोएट. अगर इसको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है तो थोड़ा सा मीडियम को, बेसिक मीडियम रहता है इन जनरल, उसको थोड़ा सा एसिडिक कर देना होता है. एसिड डाल देना होता है अलग से एंड इट विल बिकम. ठीक है.
So these are all sets of reactions which we have to cover over here. अब मैं एक काम करता हूँ, नीचे वाली चीजें जो है उनको रब कर देता हूँ. These are useless stuffs now, and I will retain ऊपर वाला portion and then start discussing them one by one, right? Okay. नोट कर लिया था हम लोगों ने. Noted. Very good. Let us write down some basic or some important general points about all these reactions. ठीक है. One such general point is that the very first thing which I told, that the Lewis acid must be anhydrous. ठीक है. Otherwise, what will happen? General points about these aromatic reactions. Number one, the Lewis acid must be anhydrous, right? So that they do not form complexes with H2O or get hydrolyzed. Okay. This will hamper the chances of reagent to interact with the Lewis acid in order to generate the electrophile. ठीक है. This will diminish the chances of reagents to generate electrophiles. ठीक है. You can write this will diminish opportunity for reagents to generate less. ठीक है. Second general point is most of the E plus reactions or electrophilic substitution reactions, electrophilic substitution reactions are stepwise reversible.
दैट इज स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ऑल आर इंडिविजुअली रिवर्सिबल। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं दैट इज step 1, not step 1 but step 2 and 3 are step 2 and step 3 are individually reversible, but not end to end reversible। ठीक है, काफी जगह पर ये होता है कि स्टेप 1 रिवर्सिबल नहीं रहता है, कहीं कहीं पर स्टेप 3 रिवर्सिबल नहीं रहता है, बट इंडिविजुअली स्टेप्स जो होते हैं काफी टाइम रिवर्सिबल रहते हैं। ठीक है, इनफैक्ट स्टेप 1 भी काफी टाइम रिवर्सिबल रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं रहता है। तो कहीं पर स्टेप 1 है तो स्टेप 3 नहीं है, स्टेप 3 है तो स्टेप 1 नहीं है, इस तरीके का गेम चलता रहता है। देर इज हार्डली वन केस जहां पर तीनों के तीनों रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है ना, एंड दैट केस इज नथिंग बट सल्फोनेशन। सल्फोनेशन process is end to end reversible। ठीक है, बस इसमें अब प्ले ये रहता है, कंसेंट्रेशन बढ़ाइए, सल्फोनेटेड प्रोडक्ट मिलेगा, डायल्यूशन कीजिए, यू विल गेट डीसल्फोनेटेड प्रोडक्ट। ठीक है, कंसेंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड की बढ़ाएंगे, वी विल हैव सल्फोनेटेड प्रोडक्ट। डीसल्फोनेटेड चाहिए तो हमको सिर्फ उसको डाइल्यूट करना होता है और कुछ ज्यादा करना नहीं होता है। ठीक है, स्टेप 1 के अंदर में देर इज ड्युअलिटी ऑफ मैकेनिज्म। स्टेप 1 दैट इज generation of electrophile is a dual mechanism step। ठीक है, और सबसे आखिरी पॉइंट जो होता है वो ये होता है कि let us go to the previous page। in general ये स्टेप 3 जो है, दिस इज नॉट अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, राइट। स्टेप 3 इज नॉट अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, एम आई राइट। कौन सा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है? स्टेप 2। आरडीएस इज स्टेप 2, एम आई राइट। Under such circumstances, if I replace this hydrogen with deuterium, will it have any effect on the rate of the reaction? Definitely no. Right now, it will not have any effect on the rate of the reaction. The reaction will go as per the original rate। ठीक है, सल्फोनेशन अगर है प्रोसेस, ठीक है ना, सल्फोनेशन अगर प्रोसेस है तो सल्फोनेशन में ये दोनों स्टेप्स जो होते हैं वो लगभग बराबर लेवल के रहते हैं। ये दोनों पिक्स जो होते हैं वो लगभग बराबर लेवल के होते हैं। बात समझ में आ रही है? ये सिर्फ सल्फोनेशन के केस में होता है, इसी की वजह से ये एंड टू एंड रिवर्सिबल रहता है। अब पॉइंट ये है कि अगर ये एंड टू एंड रिवर्सिबल है
और दोनों पिक्स लगभग बराबर हैं, यानी बोथ ऑफ देम हैज टेंडेंसी और they are equally important as far as rate is concerned. That simply means that if I am going to deuteriate my benzene ring, ठीक है, तो deprotonation जो होगा that is dedeutriation, ठीक है ना, ड्यूट्रॉन का एलिमिनेशन जो होगा that will require some extra quantum of energy, and therefore that will become the rate determining step, and hence it will start showing isotopic effect. But apart from sulfonation, for any other aromatic reactions, we are never going to see isotopic effect. Am I making sense? हेलो। हाँ सर। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ, बात समझ में आ रही है? हाँ सर। ठीक है। सो सल्फोनेशन को छोड़ करके बाकी हर जगह पे देयर इज नो आइसोटोपिक इफेक्ट। ओनली इन केस ऑफ सल्फोनेशन देयर इज आइसोटोपिक इफेक्ट। क्लियर है? ठीक है, फिर इस पॉइंट को हम लोग नोट कर लेते हैं। रीजन सल्फोनेशन क्या हुआ? कोई कुछ बोल रहा है? हाँ सर। बोलो ना। अरे मैं हाँ सर बोला बस। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कुछ क्वेरी है तुम्हारी। तुम्हारी क्वेरीज होती हैं तो मैं खुश हो जाता हूँ। आई फील लाइक कि एक नहीं पढ़ने वाला बच्चा पढ़ना शुरू किया, एंड आई ऑलवेज बिकम हैप्पी। तो तुम कभी मुझे खुश सर होने पढ़ता हूँ मैं। सपने में, पबजी में। हाँ, लेट अस टेक अप दिस पॉइंट। There is no isotopic effect in any of the aromatic reactions except सल्फोनेशन। ठीक है, reason I'll explain. I mean, reason I have already explained. Do you want me to write here, or we can take it down at sulfonation? I think let us take it down at sulfonation itself. ठीक है, यहाँ पर रिएक्शंस में एक चीज मुझे देख लेने दो पहले थोड़ा सा। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक का ये जनरल प्रोसेस हो गया है, एंड नाउ आई एम गोइंग टू हैव अ लुक, वॉक यू गाइस थ्रू इंडिविजुअल प्रोसेसेस। इसके अंदर में फर्स्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस जो होते हैं दैट इज कॉल्ड मोनो सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, मोनो सब्स्टिट्यूशन में हमें किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होती है,
पहली बार हमको रिंग के ऊपर ऐड करना होता है, तो ज्यादा टेंशन नहीं होती है हमें, ठीक है। द फर्स्ट वन इज हैलोजिनेशन। और ओके, ठीक है, मैं ये फटाफट लिखते जाता हूँ। आई थिंक इसमें कुछ बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत मुझे नहीं लगता है कि है। रिंग प्लस x2 with anhydrous Lewis acid ठीक है, and you have benzene ring with X, ठीक है। X is equal to Cl और Br, ठीक है। X is equal to I implies a reaction is highly reversible। फॉरवर्ड प्रोडक्ट्स कम बनेंगे नहीं बनेंगे, ठीक है। X is equal to F पे it becomes the reaction is too violent to take place and it doesn't proceeds। Steps of the reaction: X2 first reacts with a Lewis acid to form X dot 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 X La or delta positive, delta negative, and it gets separated. This then attacks the ring to generate we have X and then we have H and then we have plus over here. Yeah. Then we have loss of H plus to regenerate aromaticity, ठीक है। Loss of H plus to regenerate aromaticity and then this H plus reacts with this to form यहाँ पर La X माइनस फॉर्म होकर के बैठा होता है, H प्लस इसके साथ रिएक्ट करके HX बना लेता है, ठीक है। दैट इज हाउ द होल प्रोसेस गोज ऑन। इसमें कोई भी चीज आर्बिट नहीं है, एवरीथिंग इज एज पर द स्कीम। पुराना वाला ग्राफ जो है वही एज इट इज फॉलो होता है, सो नो फनी बिजनेस, ठीक है। ओनली थिंग इज फ्लोरिनेशन एंड फ्लोरिनेशन के बाद आपका हमारा होता है आयोडीनेशन, ठीक है। फ्लोरिनेशन प्रोसेस के टाइम पर द डिटेल्ड स्टेप्स आर नॉट
that available, not taken down by me. So this actually reacts directly with TL OC double bond OCH CF3 trifluoro, and this generates TLOC double bond O CF3 whole twice, which is then treated with KF or maybe BF3 to generate. अच्छा, KF मतलब आयनिक, BF3 मतलब कोवैलेंट। ठीक है, KF के बदले NaF भी हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है। टू रीजनरेट फ्लोराइड, बेंजोफ्लोराइड। ठीक है, यहाँ पर हलाइड एक्सचेंज वाला प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, जैसा हम लोग जनरली वहां पे करते थे अल्काइल हलाइड्स में। ठीक है ना, फ्लोरिनेशन के लिए कौन सा प्रोसेस यूज करते थे अल्काइल हलाइड में? Schwartz reaction. सॉर्ट। और हाँ। आयोडीन के लिए हम लोग Finkelstein. Finkelstein। वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पर इसका नाम, ये रिएजेंट जो है ये ध्यान में रहना चाहिए आप लोगों को, फ्लोरिनेशन का और आयोडीनेशन का। आयोडीनेशन अच्छा, एक बात और, ये वाला बोला जा रहा है हाईली क्या है, सॉरी टू वायलेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका एक्टिवेशन एनर्जी अगर आपसे पूछ लिया जाए, ज्यादा होगा कम होगा, आपका आंसर क्या होगा? फ्लोरिनेशन का कम एक्टिवेशन होगा। एनर्जी ज्यादा होगा कम होगा? क्वेश्चन के एक बार वापस। मैंने बोला लिखा हुआ है ना, फ्लोरिनेशन जो है वो टू वायलेंट है, तो एक्टिवेशन एनर्जी हाँ, ज्यादा होगा कम होगा? बहुत कम होगा। अच्छा हाँ, एक्टिवेशन वॉल्यूम एनर्जी से वायलेंट होने का क्या लेना देना है? एक्टिवेशन एनर्जी कम हो तो वो हाँ कम एनर्जी पे भी रिएक्ट कर लेगा, मतलब फटाफट कर लेगा। हाँ, लेकिन वायलेंट होने के लिए कम होने की एनर्जी की जरूरत नहीं है, ज्यादा एनर्जी रिलीज करने की जरूरत है। ओके। अगर ये चीज सेम लेवल का भी होता है और ये ग्राफ और नीचे आ जाता है, स्टिल इट कैन बी वायलेंट, isn't it? हाँ सर। होगा ना? हाँ सर। हाँ। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो एक्टिवेशन एनर्जी की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए, मैं यहाँ पर ये समझाने की ही बस कोशिश कर रहा हूँ। एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है, बट बहुत कम होने से हमको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है ज्यादा। वायलेंट होने का मतलब क्या है? सिर्फ फास्ट होने से चीजें वायलेंट हो जाएंगी? वायलेंट का मतलब क्या है? हम्म? वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम जैसे एक्सप्लेन कैसे करें? हाँ मतलब वही तो एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन नहीं बताओ क्या हो सकता है। इफ समथिंग इज वेरी फास्ट, इज इट वायलेंट? नो। नॉट नेसेसरली। आयोडीन भी फास्ट रिएक्ट करता है, रिवर्सिबल है, फास्ट ही तो रिएक्ट करेगा, स्लो रिएक्शन थोड़ी देगा है आयोडीन। इट्स नॉट वायलेंट। वायलेंट इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू very sudden
ये evolution of large amount of energy, sudden expulsion of large amount of energy create violence, right? Violence, Okay. violent is not about anything taking place too fast, ठीक है? Too fast उसका एक जस्ट पार्ट हो सकता है, ठीक है, बट दैट इज नॉट द होल एंड सोल थिंग. Violent is always about more energy being evolved, ठीक है ना? Are we getting this point? Yes, sir. क्लियर है? आई मीन स्पेसिफिकली मेरे पूछने का ये पर्पस ही था, हर जगह पर ये वायलेंट और इस तरह की चीजें यार पूछते रहते हैं, तो मुझे भी जितना चीज समझ में आता है तुम लोगों के साथ मैं ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है? क्या पता कुछ इसी में से आ जाए, ऐसी चीज आ जाए जो कभी पूछा है या जिस डायमेंशन डायरेक्शन में पूछा है तो कुछ फायदा हो जाएगा. The first reagent is ICl plus AlCl3. Second reagent is I2 plus HNO2. Sorry, HNO3. Third one is I2 plus HiO3. And we have this. बेसिकली इसमें दूसरा वाला कंपोनेंट जो होता है ना, ये जो यूज कर रहे होते हैं हम लोग, ये प्राइमरली इस बात के लिए यूज कर रहे होते हैं, यहाँ पे जो दोनों यूज कर रहे हैं वो इसलिए यूज कर रहे होते हैं कि ये जैसे ही फॉर्म हो ना, इसको कंज्यूम कर दो, ये बचेगा अकेले तो कुछ कर नहीं सकता है, ठीक है, रिवर्सिबल नहीं होगा. और यहां पर क्या है, वी हैव अ ये सेल्फ सिल्डिंग, ClH के साथ एक बार कंबाइन कर गया तो ये फिर से निकल करके I के साथ कंबाइन करने जाएगा नहीं, तो I बाहर आएगा कैसे? सो फर्स्ट वाले में देयर इज सेल्फ सिल्डिंग, सेकेंड एंड थर्ड वाले में वी आर एक्चुअली ऑक्सीडाइजिंग इट द मोमेंट इट इज गेटिंग फॉर्म. तो दो HI को ऑक्सीडाइज करके फिर से I2 बना दिया, तू आगे बढ़, ठीक है ना? रिवर्सिबल नहीं रहने देंगे हम तुमको. मेकिंग सेंस? हेलो हेलो, हाँ सर. हाँ हाँ, सर. समझ में आ रही है बात? हाँ सर. ओके, कैन आई प्रोसीड? हाँ. ओके, चलेगा. लेट अस हैव अ लुक एट नाइट्रेशन. सेकेंड नंबर पर आई थिंक नाइट्रेशन प्रोसेस से लिखवाया था ना. नाइट्रेशन, नाइट्रेशन वाले केस में अगेन आई हैव डिस्कस्ड इट विथ यू गाइस. रिएक्शन तीन ही की है, ठीक है. दो जो होते हैं वो डायरेक्टली फॉर्म कर लेते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है डिजायर्ड फॉर्मेट में,
एंड एक में हमको फॉर्म कराने की जरूरत पड़ती है. द फर्स्ट वन इज HNO3 विथ H2SO4. The second one is NO2BF4. The third one is NO2ClO4. ठीक है. And we have final product as nitrated product NO2. और HNO3 का जनरेशन कैसे होता है NO2 प्लस का, ये भी मैंने लगभग एक्सप्लेन कर दिया था वहां पर. स्टिल आई एम राइटिंग इट डाउन अगेन. 2OH. शुड आई राइट इट और लीव इट? और इस प्रोसेस के अंदर में yes, there is nothing much to be discussed. बस एक चीज खाली रहता है. H2SO4 जो यहाँ पर यूज होता है फर्स्ट वाले पार्ट में, उसका बहुत सारा काम रहता है यहाँ पे. सबसे पहले उसका काम होता है एज अ एसिड का, कैटलाइज करता है, HNO2 से जनरेट करता है, HNO3 से NO2 प्लस जनरेट करता है. ठीक है. सेकेंड टाइम में वो मतलब कैटलाइज करने के बाद वो डिहाइड्रेट भी करता है. बेसिकली HNO3 को डिहाइड्रेट करके ही वो NO2 प्लस बनाता है. ठीक है. NO2 प्लस बनाने के बाद फिर वो प्रोटोनियम एक्सट्रैक्शन का भी काम करता है, यानी एज अ या प्रोटोनियम एक्सट्रैक्शन में ही भी हेल्प करता है, H प्लस को एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है. सो इस वाले पार्ट में यहाँ पर अगर H2SO4 यूज कर रहे हैं तो H2SO4 वर्क्स एज अ कैटलिस्ट. H2SO4 works as a catalyst. Catalyst के अलावा dehydrating agent and as an acid. मल्टीफेसेट रोल. ठीक है. साथ में हेल्प्स इन डीप्रोटोनेशन एज वेल, रीजनरेशन होता है. नहीं, कैटलिस्ट का रोल ही बेसिकली H प्लस जो ले रहा है तो फिर खुद रीजनरेट हो जा रहा है, एज अ कैटलिस्ट वर्क कर रहा है. ठीक है. देयर इज नथिंग मच टू बी डिस्कस. कुछ होगा तो मैं बताता हूँ. मतलब एक चीज और है यार यहाँ पे, NO2 से सिर्फ NO2 पर हमारा काम रुकता नहीं है. एक्चुअली चेन सीक्वेंस में जब हम जाते हैं ना, तो NO2 को हमको कन्वर्ट करना पड़ता है अमाइन में. ठीक है. एंड उसके लिए दो जो इम्पोर्टेंट रिएजेंट्स हमारे पास होते हैं, SN के साथ HCl डाल के हम करते हैं, या फिर H2 के साथ PD, H2PD. ठीक है. और ये सेलेक्टिवली सिर्फ नाइट्रो को अमाइन ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है. ये दोनों ही चीजें नाइट्रो को अमाइन ग्रुप में कन्वर्ट कर देती है. एंड दिस देन बिकम्स ठीक है a step for further reaction creating diazonium. ठीक है. maybe we can treat it with NaNO2 with some HCl or something like that, and it will create diazonium. डायजोनियम के बाद हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं जो ये कर सकता है. ये किसी के साथ भी रिएक्ट कर सकता है फॉर दैट मैटर. ठीक है. हलाइड्स वगैरह HCl वगैरह के साथ, सॉरी COCl के साथ यूज करके ये हैलोआरीन्स बना सकता है. फिर आप बेसिक मीडियम में अगर इसको NaOH के साथ रिएक्ट करा देते हो तो फिनॉल बना लेता है.
सो यहां से एक्चुअली वैरायटी ऑफ रिएक्शंस हम जनरेट कर सकते हैं. देयरफॉर नाइट्रेशन इज अ की स्टेप इन एरोमेटिक रिएक्शंस. ठीक है. एंड इट हैज टू बी लाइक you have to like know it very well. इनके ये 3 रिएजेंट्स जो है ना, ये हमको ध्यान रहने चाहिए. ये वाला तो पहला वाला तो बहुत कॉमन है, दूसरे और तीसरे वाले भी हमको ध्यान रहने चाहिए कि इनके प्रेजेंस में नाइट्रेशन रिएक्शन ही होना है. ठीक है ना. स्टेप वाइज रिएक्शंस जो रहेंगे वहां पर आइडेंटिफिकेशन में आसानी रहती है. दैट इज थिंग. नहीं तो यू कैन मे लूज ट्रैक, और एक बार ट्रैक लूज किए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी. डायजोनियम का फॉर्मेशन तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, तो उसकी मैकेनिज्म वगैरह फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? नहीं ना. NO2 सॉरी NH2 के साथ NO2 माइनस का रिएक्शन कैसे होगा वो मैंने एक्सप्लेन किया था ना पहले. हाँ सर किया. किया है ना. ठीक है. HNO2 के रिएक्शन को मैंने किया है. सो मैं बार बार उसी को करते रहने का कोई पॉइंट नहीं है. सो दैट इज समथिंग. नाइट्रेशन प्रोसेस जो होगा ये स्टेप वाइज रिवर्सिबल होता है, बट ओवरऑल रिवर्सिबल नहीं होता है. इट इज स्टेप वाइज रिवर्सिबल. स्टेप वाइज रिवर्सिबल but not fully रिवर्सिबल. अब एक चीज बताओ, जस्ट सोच करके खुद से बताना, मैंने बताया नहीं है ये चीज तुम लोगों को पहले. और इसमें स्टेप 1 रिवर्सिबल होगा कि नहीं? स्टेप 1 क्या है? इससे इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन रिवर्सिबल है नहीं है? देखो फर्स्ट स्टेप तो रिवर्सिबल होगा ना. ये एसिड बेस टाइप रिएक्शन है ना. H प्लस जा रहा है HNO3 के पास, फिर उसमें से H2O निकल रहा है. ठीक है. सो इट इज काइंड ऑफ एसिड बेस रिएक्शन. तो ये स्टेप तो रिवर्सिबल होगा ही होगा. ठीक है. रही बात एडिशन ऑफ NO2 की. एडिशन ऑफ NO2 जो प्रोसेस है दैट is again reversible. It is only that the third step is irreversible. ठीक है. इन सॉरी इनफैक्ट सेकेंड स्टेप जो होता है, थर्ड स्टेप irreversible. थर्ड स्टेप इज एक्चुअली मोर irreversible. एक तो एक्टिवेशन एनर्जी की वजह से, बट यहाँ पर सेकेंड स्टेप भी बहुत ज्यादा रिवर्सिबल नहीं होता है. NO2 का बॉन्डिंग जो होता है दैट इज एक्चुअली स्ट्रॉन्ग. नाइट्रोजन की बॉन्डिंग विद कार्बन इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड दैट इज बेयरली रिवर्सिबल. तो सेकेंड स्टेप के इरिवर्सिबिलिटी की वजह से दिस रिएक्शन बिकम्स इरिवर्सिबल. ठीक है. अब स्टेप 2 का रिवर्सिबल होने का मतलब क्या है पता है? स्टेप 3 के लिए जो इंटरमीडिएट बन रहा है वहां से स्टेप 1 का इंटरमीडिएट ये क्रिएट होना बेंजीन रिंग, उतने पार्ट के लिए वो रिवर्सिबल होता है. बट एक बार H प्लस निकल गया वहां से, H प्लस निकल गया तो फिर रिवर्सिबल नहीं बचता है. स्टेप व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, देखो NO2 ऐड हुआ. सो यहां पर जो हमारे पास स्ट्रक्चर होगा वो ये वाला स्ट्रक्चर होगा. NO2H एंड ये प्लस. यहां पर राइट ना, सॉरी यहाँ पे नहीं, ये वाला तो यहाँ पे होगा, ये वाला यहाँ पे होगा.
और आखिरी में जो होगा हमारे पास वो यहाँ पे होगा NO2। यहाँ पर होगा जब ये डीअटैच हो रहा होगा, डिटैच हो रहा होगा, पुल आउट हो रहा होगा, दैट इज दिस पार्ट। इस पार्ट के बाद जब फॉल डाउन कर जाता है यहां से ये रिवर्सिबल नहीं होता है। इस पॉइंट से सॉरी इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में ये जनरली रिवर्सिबल रहता है। इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में इट इज रिवर्सिबल, इट इज नॉट रिवर्सिबल इन दिस पार्ट। ठीक है, सो डीप्रोटोनेशन के बाद ये परफेक्टली रिवर्सिबल नहीं रहता है, बहुत वीकली रिवर्सिबल होता है। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन के साथ यही होता है इसमें। एम आई मेकिंग सेंस? हाँ जी। ओके, आइसोटोपिक इफेक्ट इसमें रहेगा नहीं रहेगा? नो आइसोटोपिक इफेक्ट, राइट? आइसोटोपिक इफेक्ट सिर्फ एक ही जगह पे रहने वाला है, दैट इज सल्फोनेशन, बाकी कहीं नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? फुल्ली रिवर्सिबल नहीं है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी दोनों जगह पे लगभग बराबर नहीं है। Sulfonation step 1. H2SO4 reacts with itself to form HOS double bond O double bond O double bond नहीं single bond OH and एक और H, यहाँ पे प्लस चार्ज प्लस HSO4 माइनस। ठीक है, फर्दर HOH plus S double bond O double bond O OH SO3 plus H3O plus H2O निकलता है। H2O निकलने के बाद ये सॉरी ये H2O निकलेगा, यहाँ पे प्लस चार्ज, लोन पेयर इधर आएगा, ये प्लस चार्ज ऊपर ट्रांसफर होएगा और H प्लस बाहर निकल जाता है H3O प्लस। ठीक है, this becomes the electrophile okay. Step 2 is general as usual. We have benzene ring, SO3 with its vacant d orbital is coming close to it, and we have a reversible reaction taking place leading to formation of this sort of system, SO3H, and this will have a minus sign. ठीक है, the last step will be
step 3. In step 3, ये माइनस क्यों आया समझ में आ रहा है हम लोगों को? Anyone who is unable to understand it? नहीं समझा। हेलो। और शर्माना नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई क्राइम नहीं है। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ समझना चाहिए आप लोगों को, बट नहीं समझ में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू गाइज कैन आस्क एंड आई विल अप्रिशिएट इफ यू आर गोइंग टू आस्क। ठीक है। This system will lose a H plus to generate SO3 minus, and it will then reversibly accept H plus again from the system. ये पहले सिस्टम को लूज करेगा H प्लस, माइनस H प्लस होएगा और फिर गेन करेगा H प्लस in order to make it SO3H। ठीक है। इस पूरे प्रोसेस में जब तक H हमारा रहता है, हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का रहता है, एनर्जी ग्राफ। आज के लिए यहीं पे हम लोग खत्म करेंगे। दिस इज द लास्ट थिंग आई एम टेलिंग यू गाइस। ठीक है। बहुत ही स्लाइटली ये एक्सोथर्मिक होता है, बहुत स्लाइट एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है। दोनों कर्व्स लगभग बराबर होते हैं इनके। दिस इज अ रीजन साइटेड फॉर देयर ठीक है रिवर्सिबिलिटी, एंड टू एंड रिवर्सिबिलिटी। अब इसके बदले अगर हमने ड्यूट्रियम यूज कर लिया, डी यूज कर लिया, तो व्हाट विल हैपन? The use of D, this curve is expected to rise higher and become a not only higher, rather this will also come down bit more। ठीक है। एक सेकंड, अब यहाँ पे आता है नहीं आता है उससे बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा हमको, नहीं भी आया तब भी नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है। ये वाला पार्ट जो है ये हमारा डेफिनेटली इम्पैक्ट होएगा। ठीक है। एंड द मोमेंट दिस गेट्स इम्पैक्टेड, what will happen? EA C hyphen D bond. The isotopic effect will start showing up, right? So here we can write it, write that all steps are reversible along with end to end
reversibility due to this not due to this, rather we can say that this means activation energy of step 2 and step 3 are almost same. Further, if we use deuterated benzene, the EA for step 3 overshoots EA of step 2, making this reaction to display isotopic effect. ठीक है, this is also experimentally confirmed. ठीक है, एक्चुअली इसी से ये सारी चीजें जो है एंड टू एंड रिवर्सिबिलिटी कॉन्सेप्ट जो है इसका ना वो आया है इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से. Am I making sense? Yes, sir. Okay. और ये आइसोटोपिक इफेक्ट स्लो जैसे ही शो करेगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, रेट ऑफ सल्फोनेशन जो होगा, रेट ऑफ सल्फोनेशन ऑफ नॉर्मल बेंजीन will be less than rate of sulfonation of deuterated benzene. Right? इसी सीक्वेंस में फिर we will discuss the desulfonation reaction. Desulfonation reaction. इसके अंदर में क्या होता है, यहाँ पे हमने सारे स्टेप्स जो हैं वो रिवर्सिबल डाल रखे हैं, बस कुछ है नहीं, यहाँ से चलो और यहाँ पे पहुंच जाओ. ठीक है, सारे रिएजेंट्स को जनरेट कर लेंगे अगर हम, सारी चीजें रीजनरेट हो जाएंगी. वी आर डन. प्रोसेस लिखने की जरूरत है, एंड प्रोडक्ट लिख दिया जाए.
बस ये होता है, उसमें कंसंट्रेटेड लेना होता है, इधर डाइल्यूट लेना होता है। मतलब थोड़ा पानी डाल के डाइल्यूट कर दो, रिएक्शन बैकवर्ड आ जाता है। ठीक है, volatile H2SO4. This one is non-volatile. यहाँ पर बस ये चीज एक नोट कर सकते हो, कर देता हूँ मैं अगले पेज में जाके। 14th page. Page 14, that is for sulfonation we need Kong H2SO4 or fuming H2SO4 and if we dilute the system the reverse process stops dominating. That is desulfonation takes place. Okay. तो एक तो H2O2 आप डाल सकते हो इसके अंदर में, सॉरी H2O डालोगे तो फॉरवर्ड आएगा, और दूसरा इसको निकालते जाओ तो भी फॉरवर्ड आते जाएगा। ठीक है, इसको निकाल पाना आसान नहीं होगा, ये वोलेटाइल है तो हम निकाल सकते हैं, ये अगर बाहर निकलता गया तब भी ये फॉरवर्ड ड्रिवन रिएक्शन हो जाएगा। एम आई मेकिंग सेंस?